are continuing our topic of tense. In the last class, we have discussed about structure and what we need to form a sentence. इन दो चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. साथ में हमने ये भी पढ़ा था where to add s और es in this tense, simple present tense. और ये भी पढ़ा था कि s किस वर्ड के साथ, किस वर्ब के साथ, और es किस वर्ब के साथ. I am talking about simple present tense. इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था. सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. And we have discussed everything, all the things that is related to verb one, where to add s and es, and where to add with which verb we will add es and with which verb we will add s. We have discussed about all this topic in the previous class. Now we are proceeding forward. Now proceeding forward, we are coming to form sentence in simple present tense. How to form sentence in simple present tense. Talking about the structure, we all know it needs a subject, a verb one, and object. What is verb one? It is the first form of verb. We have already discussed in the previous class verb one, verb two, and verb three. We will use the first form of verb. In the last class, what we have not discussed is about auxiliary verb. Auxiliary verb. कोई भी सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर, we cannot form a sentence without an auxiliary verb. Auxiliary verb को हम लोग helping verb भी बोलते हैं, but according to its use, it is not a helping verb, but it is a main verb. ये main verb की तरह काम करता है, क्योंकि बिना auxiliary verb का sentence possible नहीं है. आप बिना main verb का sentence बना सकते हैं. I go to पटना, यहाँ पर मेन वर्ब है. I have a car, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है. There is no main verb in this sentence, but there is a auxiliary verb. So without an auxiliary verb, no any sentence is possible in English grammar. And in last class, we have not discussed about auxiliary verb. So in today's class, we are going to discuss about it by forming sentence. So based on this structure, we can form a simple sentence. Ram plays football. We have taken our subject. It is a third person singular number. So that is why we have added s with the first form of verb and football is the object. Now when we are talking about sentence, basically sentences are of these kinds. The first one is affirmation, then is negation, then is interrogation. So today we are going to discuss about all these type of sentences based on the structure of simple present tense. The sentence that we have written is in positive form, or we can say affirmation, in affirmation form. In what form? In affirmation form. Now, if you want to convert this sentence or transform this sentence to negative, what you need is the auxiliary verb. What you need is the auxiliary verb. The very simple method to make an interrogative sentence and a negative sentence is by using the auxiliary verb. What you need to do is, suppose I am writing, I am writing. If you need to convert or transform this sentence into negative, what you will do is, simply you will add not to this auxiliary verb. I am not writing. And if you want to convert it into interrogative, what you will do is, you will place this auxiliary verb before the subject.
am I writing? बट वाइल डूइंग दिस, ये करते समय एक बात याद रखना है आपको कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका इंट्रोगेटिव जो हम लोग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे, एम आई नॉट राइटिंग। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो ये पॉजिटिव बनेगा, नॉट हट जाएगा, am I writing? Is it clear how you will make negative sentence and how you will form interrogative sentences? Now we will apply this with our structure that we have formed. But before that, you must know what auxiliary verb to use in simple present tense. So I am writing here the auxiliary verb that is used is do and does. In simple present tense, the auxiliary verb that you need is do and does. Now the question is where to use do and where to use does. Again we will come to that box. पिछले क्लास में हमने एक बॉक्स बनाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल वाला। उसमें से मैंने एक को राउंड सर्कल किया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता था, याद है? ही, सी, इट एंड और सिंगल नेम, ऑल दीज कम्स अंडर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दीज सब्जेक्ट्स आर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। विथ दीज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वी विल ऐड does, and with all the rest subjects we will add do. Is it clear? With third person singular number we will add does, and other subject we will add do. The example that we have taken, Ram plays football. Okay, take the screenshot first. Okay, the example that we have taken is Ram plays football. And what is Ram? Ram is third person singular number. So while converting it into negative sentence, what auxiliary verb you will use? We will use does. The sentence will become Ram does. We will add not with the auxiliary verb. Not play football. Ram does not play football. Now there must be a question in your mind that where is this S? I have not written. Have I missed S or have I eradicated S? What is the reason? The reason is this S was signifying that our subject is third person singular number. ये S जो है हम लोगों को बता रहा था कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ पर S को जोड़ा था। बट हियर does we have already used. does हम लोगों ने पहले ही यूज कर दिया है, तो does से तो पता चल ही रहा है कि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस S एडिंग टू प्ले। यहाँ पर इस S को प्ले में ऐड करने का कोई भी मतलब नहीं है। दैट इज व्हाई व्हेन does is used in a sentence we will remove S from the main verb. Is it okay? While the auxiliary verb is not there in the sentence, then you will add S or PS with the verb one form in simple present tense. While does is used, then you will remove the S from the verb one form. Is it okay? Okay, now, so we have the affirmative form, we have the negative form. Now what we will do, we will convert both the sentence into interrogative. So first we will change this sentence. We will change this sentence into interrogative. Since it is a positive sentence, the interrogative will be in negative form. So the auxiliary verb that we will use is does. Then comes subject. Then not. Does Ram not play football? Since we have already used does, that is why we have removed S from plays. Is it okay?
Now we are coming to this sentence. It is in negative form. While converting it into interrogative form, it will be in positive. Does Ram play football? That's it. This is affirmative form, this is negative form, this is interrogative of this sentence, this is interrogative of this sentence. Is it okay? Any problem? So this is how we can form sentence in simple present tense, and we can transform one sentence from one form to another. Is it okay? So now we will move to present continuous tense. इधर आई पॉज कहाँ इस पे करता है कि ऊपर वाला है? Okay, now we are moving to the next tense of present. Present का पहला हम लोगों ने कर लिया simple present tense. अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे में, which is present continuous tense. Present continuous tense. इसमें एक वर्ड आ रहा है continuous. Continuous word is used to show the continuity of the word. इसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे जिसमें काम प्रेजेंट में चल रहा है, ना तो वो शुरुआत होने वाला है ना तो वो खत्म हो चुका है, बल्कि शुरुआत हो चुका है और अभी भी चल रहा है काम। वही उस तरह का सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, वह लूडो खेल रही है, मम्मी खाना पका रही है, वो काम जारी है। उस तरह का सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। हिंदी में पहचानने का बहुत सारा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका। जैसे मैंने अभी 4-5 एग्जाम्पल दिया, सभी में एक कॉमन चीज था, रहा, रही, रहे हो। इस तरह का अगर आए तो आप समझ जाएंगे कि वो कंटिन्यूअस टेंस में है। और इंग्लिश में पहचानने का सबसे आसान तरीका है, wherever we are showing continuity of the verb, we will always use ing form of verb. Wherever we will show continuity, we will always use verb 1 plus ing form. Suppose verb 1 is play, we will use playing. Verb 1 is do, we will use doing. Verb 1 is eat, we will use eating. So ing form of verb we use to show the continuity of the verb. तो हम लोग ये समझ गए कि verb कौन सा यूज करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 फॉर्म यूज किया था, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V1 प्लस ing फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब डू डज लगाया था, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम एंड आर का यूज करेंगे। इज, एम एंड आर। एक बात और बता दूं, 12 टेंस में से हम लोगों ने 4 टेंस पढ़ा। हर एक में प्रेजेंट में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। इनमें से सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जिसमें इन एफर्मेटिव फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखता। सॉरी, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा था राम प्लेज फुटबॉल, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है इसमें। इसी तरह सिंपल पास्ट में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा। जैसे ही हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वी विल सी दैट देयर इज अ यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इज इट ओके? So always remember there are 2 tenses in which in affirmative form you will not find any auxiliary verb. As soon as you will convert it into interrogative or negative sentence, you will see a use of auxiliary with such type of sentences.
तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और मैंने कहा कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब इज ए मार्क लगता है और वर्ब आईएनजी फॉर्म और यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इज एंड और आर कहां कहां लगता है। सबसे पहले बता दूं इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, and is always used with I, and are is used with plural subjects। ये क्लियर हो गया। is सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, and हमेशा I के साथ लगेगा, और are प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे he, she, प्लूरल सब्जेक्ट दे, बॉयज, और आई तो आई है। तो हम लोगों ने ये देख लिया वेयर टू यूज विच ऑक्सिलरी वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आईएनजी फॉर्म का यूज होता ही है। नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन वी कम टू स्ट्रक्चर, as we have already discussed, to form a sentence we need a subject, a verb and an object. When we are talking about verb, we are talking about auxiliary as well as main verb. So similarly here the structure will be a subject plus auxiliary verb will come, is, am or are will come, then the main verb will come, V1 plus ing, and then the object. Subject plus is, am, are plus V1 ing plus object. So this is the structure of present continuous tense. Based on this structure, now we are trying to form a sentence. We will take the same sentence that we are using in that we have used in present simple present tense. Ram. What auxiliary verb we will use with Ram? Among these three, is, am or are. Are is used with plural, am is used with I. What is left? Left is, which is used with singular subject. So the subject is singular, we will use is. Ram is noun or play, and we will use ing with it, playing football. That's it. The sentence is ready. Ram is playing football. Ram football खेल रहा है. In Hindi we can say Ram football खेल रहा है. In English, Ram is playing football. This is in which form? This is in affirmative form, or you can simply say positive form. Now we will try to transform it into negative form. For making negative, I have already told what we have to do is we have to just add not with the auxiliary verb. What is our auxiliary verb? Is we will just add not for negative. Ram is not playing football. Ram is, we have added not with is and then rest all, which is just copy. So negative form is ready. Ram is not playing football. Now we will convert it into interrogative. The sentence is positive. The sentence is positive. How will you know that it is positive? Because there is no use of not. Simple. There is a use of not, that means it is a negative sentence. Since it is positive, the interrogative sentence will be in negative form. I have just told. So while forming interrogative, what we will do? We will take this verb और इसको उठाकर हम लोग सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे. Is, अब हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट का भी यूज करना होगा. तो is Ram not playing football? Is Ram not playing football? रेडी हो गया. अच्छा, इसमें एक बात और मैं बता दूं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं बताना भूल गया, यहाँ बता देते हैं. अगर हम चाहें कि is और not का कंबाइंड फॉर्म को यूज करें, is not in combined we say isn't.
was not, in combined form we say wasn't. सो अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म यूज करें तो वो भी कर सकते हैं. इन दैट केस नॉट आगे आ जाएगा, यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा इसके साथ. लेकिन अगर नॉट को अलग फॉर्म में करना है यूज तो हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे. ऐसा नहीं कि इज नॉट राम प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा नहीं करेंगे. अगर हम लोग अलग अलग सेपरेट फॉर्म में यूज कर रहे हैं इज और नॉट को, तो नॉट विल ऑलवेज कम आफ्टर द सब्जेक्ट. लेकिन अगर कंबाइंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं वी कैन कंबाइन इट हियर ओनली. इज इट राम प्लेइंग फुटबॉल? इज इट क्लियर? कंबाइंड फॉर्म में करें तो यहाँ इफ वी आर यूजिंग इन सेपरेट फॉर्म नॉट विल ऑलवेज कम आफ्टर द सब्जेक्ट. मेक इट वेरी क्लियर. So this is the interrogative form of the positive sentence that we have taken. Now we are coming to the negative sentence. What is our negative sentence? Negative sentence is Ram is not playing football. तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव में. विल रिमूव नॉट. इज राम प्लेइंग फुटबॉल? इज राम प्लेइंग फुटबॉल? तो हमने यहाँ पर देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया सब्जेक्ट प्लस ईजेमा प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. We have formed the positive sentence, we have formed the negative sentence, and we have also formed the interrogative sentences of both the sentences. So this is present continuous tense. Now we will move to present perfect tense. Okay, so now we are moving to the next kind of present tense, which is present perfect tense. सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें मैंने कहा ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिससे आपका आदत या यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल स्टेटमेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ विल कम अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस. फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें हमने पढ़ा कि जिसमें कार्य चल रहा ऐसा बोलो जिस सेंटेंस में, वैसे सेंटेंस आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस. परफेक्ट हम लोग किसे कहते हैं? बात सबसे पहले ये है किस चीज को परफेक्ट. जैसे हम लोग आमिर खान को बोलते हैं मिस्टर परफेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर अपने कार्य में परिपूर्ण है, वो परफेक्ट है. हम लोग किसी का काम किसी को पूछ देते हैं, काम कंप्लीट हो जाता है तो बोलते हैं योर वर्क इज परफेक्ट, आपका काम परफेक्ट है. इसका मतलब उसने काम कंप्लीट कर चुका है और उसने आपके सामने प्रेजेंट किया और आपने उसे कहा कि आपका काम परफेक्ट है. तो इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा सेंटेंस आएगा जो काम कंप्लीट हो चुका है. अब आप कहेंगे कि ये पास्ट में होना चाहिए क्योंकि काम हो चुका है. हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसे काम को लेंगे जो अभी जस्ट खत्म हुआ है. मैंने खाना खाया और तुरंत मैं बाहर निकला, मेरा एक दोस्त मिला, दोस्त ने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कहूँगा मैं खाना खा चुका हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने काम खत्म किया. तो इस तरह का सेंटेंस इन विच वर्क हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, सच सेंटेंस कम अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इज इट ओके? सो बिफोर गोइंग टू द स्ट्रक्चर, फर्स्ट वी विल सी व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब दैट वी यूज विथ दिस टेंस. सो विथ दिस टेंस वी यूज हैज और हैव. ये हमेशा याद रखना है कि जैसे मैंने कहा कि टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ड वी यूज इज एम आर, सॉरी वी यूज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. सिमिलरली टू शो परफेक्ट टेंस वी ऑलवेज यूज हैव, हैज, हैव और हैड. जहां भी परफेक्ट हमको शो करना हो वहां पर हम लोग हैव और हैड का यूज करेंगे. कंटिन्यूटी शो करना हो तो वर्ब आईएनजी यूज करेंगे. परफेक्ट शो करना हो तो हैज, हैड यूज करेंगे. चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हैज और हैव का यूज करेंगे. एक बात और आई वुड लाइक टू टेल, हैव ऑलवेज टेक्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब.
हमने पढ़ा था verb 1, verb 2, verb 3, go, when, gone, ये थर्ड फॉर्म। हमेशा हैज हैड जहां भी ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में आएगा, इट विल ऑलवेज टेक verb 3 फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ verb V3। इज इट ओके? तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज होगा वो हैज और हैव होगा। अब हैज और हैव हमेशा V3 लेता है, तो ये भी पता चल गया कि मेन वर्ब किस फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। द मेन फॉर्म दैट वी आर यूजिंग इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ वी आर कमिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जब हम लोग आएंगे तो अगेन वी विल कम टू दैट बेसिक फंडा, द सब्जेक्ट, then auxiliary verb I have already mentioned, has or have, then it will take the third form of verb V3, and then object, that's it. Subject plus has or have plus V3 plus object। वहाँ पर कंटिन्यूस में हमने क्या यूज किया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने यूज किया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। Based on this structure, now we will try to form sentence. The example that we have taken in simple present tense and present continuous tense, the same example we will take here also. So first of all, we will form in affirmation form, that is the positive form। Positive form में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले subject आएगा। Do you know what is subject? I will not ask. Subject क्या होता है मालूम है? हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता, मतलब कार्य को करने वाला। जिस भी काम का बारे में बात हो रहा है सेंटेंस में, जिस कार्य का बात किया जा रहा है सेंटेंस में, उस कार्य को करने वाले इंसान को कर्ता कहते हैं। इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव। मैंने नहीं बताया कि हैज कहाँ यूज करेंगे और हैव कहाँ यूज करेंगे। फिर से हम लोग उसी टेबल पर जाएंगे, पर्सन एंड वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला टेबल पे। मैंने कहा था कि इसका यूज हमें अलग अलग जगह पर मिलेगा, तो यहाँ पर भी इसका यूज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। मतलब क्या क्या था उसमें, ही, सी, इट और कोई एक नाम। अगर ये चार सब्जेक्ट होता है तो उनके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। इसमें क्या क्या आता है, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ही, सी, इट और एनीवन, नेम। अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग हमेशा हैज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। इन विच टेंस? इन प्रेजेंट परफेक्ट tense। In present perfect tense, we'll use has if the subject is third person singular number। And what kind of subject will come under third person singular number? I have already mentioned he, she, it and name। Is it clear? The subject that we have taken here is name, which is a third person singular number। So according to the rule, what auxiliary verb will use? Has or have? Yeah, has। Ram has। Now it always takes verb 3 form। The verb that we are taking is play। हम लोगों ने जो verb लिया है वो play लिया है। राम plays football, राम is playing football, है ना। तो play verb 2 played होता है और verb 3 भी इसका played होता है। तो हम लोग कौन सा फॉर्म लेंगे? verb 3 form, because has and have always takes the third form of verb। So Ram has played, and now the object, football, cricket, whatever you like, just mention। So the sentence is ready। Ram has played football। Ram has played football। Ram football खेल चुका है, not था, because we are studying present perfect tense। है। Ram has played football। This is the positive form। Now we will
transform it into negative form. For negative form, the very simple trick, we will add not to the auxiliary verb. So Ram has not played football. What we have done? We have just added not with has. We can also use the combined form. Ram hasn't played football. Ram hasn't played football. Hasn't is the combined form of has not. Is it clear? So this is positive form and this is negative form. Now what we will do is we will transform both these sentences into interrogative. So this is in positive form. These two are in negative form. Now we will convert this into interrogative. The same criteria that we have taken in other two tenses. This is in positive form. The interrogative will be in negative. We can write has Ram not played football? हैज लिया हमने, इसको उठाकर ऑक्सिलरी वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले ले आया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनेगा, और बाकी उसी तरह प्लेड फुटबॉल। इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। हैजंट राम प्लेड फुटबॉल, so this is the combined form. So this is the interrogative of this positive sentence. Now we are coming to the negative sentence. अगर नेगेटिव का इंट्रोगेटिव हमें करना पड़े तो क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के आगे ले आना है, सब्जेक्ट के पहले ले आना है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा, मतलब उसमें नॉट हम लोग नहीं लगाएंगे। तो हैज राम प्लेड फुटबॉल, हैज को उठाकर आगे ले आए, हैज राम प्लेड फुटबॉल, दैट्स इट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टेंस व्हिच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है। हम लोगों ने परफेक्ट के बारे में भी पढ़ लिया, हम लोगों ने कंटीन्यूअस के बारे में भी पढ़ लिया। परफेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा? टू शो परफेक्ट टेंस वी यूज हैज और हैव। कंटीन्यूअस के बारे में क्या पढ़ा? टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ब वी यूज V1 ING। ये दोनों चीज का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, इस टेंस में करने वाले हैं। To show the continuity, we use V1 ING, the ING form of verb, and to show the perfect tense, we use has or have। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि has और have के बारे में मैंने बताया कि has और have हमेशा V3 फॉर्म यूज करता है। परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा कि हैज और हैव जहां भी आएगा इट विल ऑलवेज टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट यहाँ पर समस्या ये है कि टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ब वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो दो वर्ब एक साथ तो यूज नहीं कर सकते हैं, प्लेइंग भी और प्लेड भी, दोनों फॉर्म यूज तो नहीं कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को यूज करना होगा हमको, या तो प्लेइंग या तो प्लेड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों को खुश करेंगे। हम लोग कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी भी यूज करेंगे और परफेक्ट टेंस को जो चाहिए वर्ब फ्री फॉर्म वो भी हम लोग उसको खुश कर देंगे। कैसे करेंगे? हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया था इज एम आर, इज एम और आर। कंटिन्यूअस टेंस में आप पीछे देख सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया था इज एम आर। उसी का
एक वर्ब फॉर्म होता है बी, मेन वर्ब फॉर्म होता है बी। इसी को हम लोग V3 में कन्वर्ट करके यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसका V3 फॉर्म होता है बिन। क्या होता है? बिन। इज ए मार का V3 फॉर्म होता है बिन। और इसको क्या चाहिए था? परफेक्ट को V3 चाहिए था, तो इसको ये वाला V3 दे देंगे जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करते थे। क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी इसको यूज करना ही होगा। तो इसी को हम लोग V3 में कन्वर्ट करके इसको पुश कर देंगे और फिर कंटिन्यूटी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए V1 ING का भी यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब इस बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव में से कोई एक, हैज और हैव में से कोई एक, इसका रिक्वायरमेंट है V3, सप्लाई करेंगे वहां से बिन। उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए V1 ING, तो V1 ING इसको दे देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर इज देयर, राम हैज और हैव बिन प्लस V1 ING प्लस object. Based on this structure, will form sentence form. Ram has, because Ram is third person singular number, we will use has. Ram has been. Then the ING form of verb. Verb we have taken play, so we will use playing football. Ram has been playing football. इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? हिंदी में इसको स्पष्ट रूप से कहने के लिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, प्रेडिकेट फॉर्म को और लंबा करते हैं। यहाँ पर स्टॉप ना करके हम लोग कर देते हैं फॉर 2 hours। राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। राम पिछले 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। राम पिछले 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। इसमें यूजुअली ऐसे सेंटेंस को हम लोग लेते हैं जिसमें कार्य भूत में शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, पहले शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वो कार्य प्रगति में है, अभी भी वो कार्य चल रहा है। इसी सेंटेंस में हम लोग फॉर और सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज मैंने दिखाया और सिंस भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहें सिंस 7 AM, सुबह 7 बजे से ही वो फुटबॉल खेल रहा है। सिंस 7 AM, सुबह 7 बजे से राम फुटबॉल खेल रहा है। फॉर 2 hours बोलेंगे तो राम 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। 2 घंटा पहले शुरू किया था, अभी भी खेल ही रहा है। 7 बजे खेलना शुरू किया था, अभी भी खेल ही रहा है। पास्ट में शुरू किया और काम अभी भी जारी है। इस तरह का सेंटेंस को अगर शो करना हो तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी हैव फॉर्म द सेंटेंस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेगेटिव फॉर्म। दिस इज इन अफर्मेशन फॉर्म और वी कैन सिंपली से पॉजिटिव फॉर्म। Now we are coming to the negative form. Negative में what was the way to write in negative? What was the way? The way was we have to just add not to the auxiliary verb. What we have to do is just add not to the auxiliary verb. What auxiliary verb we have here? Has, then we'll add just not. Ram has not been playing football. Ram has not been playing football. Ram football. Ram has not been playing football. आगे इसको जोड़ सकते हैं हम लोग for 2 hours. राम पिछले 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। Has not. What we have done? We have just added not to has. So this is the negative form. Now we will try to transform these 2 sentences into interrogative. While transforming the first sentence into interrogative, what we will do is we will just bring the auxiliary verb before the subject. हम लोग जो auxiliary verb है
इसको उठाकर सीधा सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, बट बिफोर डूइंग दैट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव फॉर्म. सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में है, सो द इंट्रोगेटिव विल बी इन negative form. That means we have to use not in the interrogative form, and use of not we have I have already told that we can use it in combined as well as in separate form. So whatever form you want to use, you can do as that. So we are making the interrogative of this sentence will bring auxiliary verb before the subject. Ram has Ram, has को उठाकर राम के पहले ले आए, has Ram. Now we have to form negative, so we will use not. Has Ram not, and rest all will add here. Not been playing football. You can add this here. Has Ram not been playing football? So this here we have used the separate form of has and not. We can use the combined form as well. What is the combined form? Hasn't Ram been playing football? Hasn't Ram been playing football? Here we have used the combined form hasn't, and in the first sentence we have used the separate form of has not. Is it okay? So this is the interrogative of the first one, the positive sentence. Now we are coming to the negative sentence. What is the negative sentence? Negative sentence is Ram has not been playing football for 2 hours or since 7. For converting it into interrogative, what we will do? We will bring the auxiliary verb before the subject. But here the sentence is negative, so the interrogative will be in positive form. We will not use not. नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे. तो हैज राम बीन प्लेइंग फुटबॉल. हैज राम बीन प्लेइंग फुटबॉल. वी हैव इरेडिकेटेड नॉट. नॉट को हम लोगों ने हटा दिया, रिमूव नॉट. तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म. इंट्रोगेटिव यही खत्म नहीं होता है, इंट्रोगेटिव और भी तरीके से बनता है यूजिंग. विल डिस्कस इट इन द इंट्रोगेटिव वर्ब. जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर देयर और इन विच फॉर्म वी कैन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द व्हिच वर्ड, यूजिंग क्वेश्चन टैग. दिस इज यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब. हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में पढ़ा है. तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है. टेंस का हम लोगों ने चारों पढ़ लिया. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक बार मैं आपको चारों टेंस को समराइज कर देता हूँ और उसके बाद ये प्रेजेंट कंप्लीट हो जाता है. So now students we are going to summarize whatever we have studied. जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ. We have finished the present tense. हम लोगों ने पढ़ा था टेंस का 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. We have discussed all the 4 tenses that comes under present tense. क्या क्या था? सबसे पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके बारे में मैंने बताया था we can say present indefinite tense also. Second one was present कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ब दिखाते थे. द थर्ड वन वाज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें काम जो खत्म हो चुका है वो आता था. एंड द लास्ट वन वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें काम कुछ समय पहले से चल रहा होता है. वर्क हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इट इज स्टिल प्रोसीडिंग. वैसा सेंटेंस आता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो मैं एक एक करके सबको समराइज कर देता हूँ. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस आता था? इसमें आता था हैबिचुअल स्टेटमेंट, हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ इसके अंदर आता था. स्ट्रक्चर क्या होता था इसका? बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। इस बेसिस पे सेंटेंस हम लोग क्या बनाए थे, राम प्लेज फुटबॉल। इस एस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी वन नेम, then we will use s or es with the first form of verb। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस में क्या कहा था, इन विच द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क अभी जारी है। इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। जगह नहीं है एग्जाम्पल लिखने के लिए, मैं मुझे बता देता हूँ। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इन विच प्लेइंग जो वर्क है इट इज इन प्रोग्रेस, इट इज स्टिल नॉट ओवर। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी खेल ही रहा है। परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या था, वर्क इज फिनिश्ड, काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या यूज करते थे हम लोग, हैज और हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट मीन्स राम हैज प्लेड फुटबॉल। Where we will use has with third person singular number, again he, she, it and any one name. If the subject is he, she, it or any one name, then we will use has, otherwise we will use have. Is it okay? So Ram has played football, or I am changing the subject I have played football, not has, because I is not for third person singular number, it is first person singular number. I have played football, or Ram has played football, or he, which is again a third person singular number, has played football. Is it okay? Now we are moving to perfect continuous tense. इसमें started in past but still in progress। पास्ट में काम शुरू हुआ है बट अभी भी काम प्रोग्रेस में है, काम चालू है। वैसे कंडीशन में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव का वही रूल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, बाकी के साथ हैव। राम हैज बीन playing football। Changing the subject, I have been playing football। Changing the subject, he has been playing football। So here I have summarized whatever we have studied in both the videos। In the next video we will move to the past tense। Your present tense is complete, practice it well in your home। Take some examples from grammar book and try to transform from one tense to another tense।